Good morning students, welcome back in your science class. Today we will do lesson 5 heat. In previous video we have done land and sea bridge. What is the use of this land and sea bridge? These land and sea bridge help in maintaining the temperature of air at a more or less uniform value through the day and the night. Sea bridge and land bridge is useful in maintaining the temperature through the day and the night. We therefore have an equitable climate on place near the sea. That's why the place near the sea have equitable climate. वहाँ का climate बहुत सही होता है. Clear? Land and sea bridge are useful to us to maintain the temperature. Next, do you know? Open your book, beta. Page number 71. The screen of our mobile is very small. That is not good for our eyes. That's why open your book. Page number 71. I have also a book with me with the screen. Do you know? Clear? Do you know the wind speed, wind direction, wind direction, temperature, humidity of a place all contribute to development of atmospheric convection current. What is the convection current? We have done the movement of molecule in liquid, or convection current here, the movement of air from one place to another. Clear? Again I am repeating this point. Wind speed, wind direction, temperature and humidity of a place all contribute to development of atmospheric convection current. Clear beta? Convection current. Into storm and cyclone. Due to this, there is storm and cyclones. The strong wind sometimes form a cloud and grow into thunderstorm. कई बार जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं वो क्लाउड का फॉर्म ले लेती है, जैसे क्लाउड होते हैं ऐसे फॉर्म ले लेती है. लुक इन द फिगर. एंड ग्रो इनटू अ थंडर स्टॉर्म हैविंग ए स्पीड ऑफ 80 to 150 किलोमीटर पर आवर. क्लियर? साइक्लोन is a huge storm having strong spiraling wind. Spiraling means ऐसे गोल गोल घूमता है उसमें. Spiraling wind going inward upward. अंदर की तरफ गोल गोल घूमती है हवा, अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ जाती है. फिर कभी आपने देखा हो, आपने किसी मूवी में देखा हो, ओके, at a speed of around 150 किलोमीटर पर आवर, वेरी हाई स्पीड, ओवर वार्म ओशियन रीजन. कह रहे हैं ये ज़्यादा कहाँ पर होता है? समुंदर के आसपास का एरिया गर्म हो जाता है तो समुंदर से हवा लैंड की तरफ फ्लो करना शुरू कर देती है. साइक्लोन रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज. साइक्लोन जो है क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज. Northern hemisphere or southern hemisphere direction around the center of storm, which is the climate and low pressure region. साइक्लोन रोटेट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज मीन गोल गोल घूमते हैं क्लॉकवाइज अराउंड द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म. जहाँ पे तूफान आता है उसके सेंटर में लो प्रेशर. द डिफरेंस इन द प्रेशर डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन. मीन्स सपोज एक स्पेस है, वहाँ की हवा गर्म होगी, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और आसपास का टेम्परेचर बहुत कम है, तो उनके बीच का प्रेशर में डिफरेंस क्या ज़्यादा आ जाता है. किसी भी साइक्लोन की इंटेंसिटी मीन
साइक्लोन कितना स्ट्रॉन्ग है वो वहाँ के प्रेशर के डिफरेंस से हम पता कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर लो होता है। वन से मैच्योर साइक्लोन फॉर्म इट कैन लास्ट अप टू ए वीक। कई अगर मैच्योर साइक्लोन हो तो पूरा वीक भी चल सकता है वो, डिपेंडिंग अपॉन द एटमॉस्फेरिक एंड ओशियन कंडीशन। वो इस डिपेंड करता है कि वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, कहाँ कैसा है, और ओशियन कंडीशन कैसी है। व्हेन साइक्लोन कम ऑन टू द लैंड, जब वो धरती पे आता है, एंड अकम्पनिंग विद हैवी रेन, स्ट्रॉन्ग विंड, लार्ज वेव्स कैन डैमेज बिल्डिंग, ट्री एंड कार्स। तो वो बिल्डिंग्स को डैमेज कर देता है। नेक्स्ट, डू यू नो इन समर at a place near the equator is that point which divide earth into two equal parts. In the summer at the place near the equator the land warm up faster. गर्मियों में इक्वेटर के आसपास की जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। Hence, most of the time the land temperature is higher than that of water. तो लैंड का टेम्परेचर जो है वाटर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा क्योंकि वो जल्दी गर्म हो जाएगी। क्लियर? द एयर ओवर द लैंड गेट हीटेड अप। लैंड गर्म होएगी तो वहाँ की एयर भी गर्म हो जाएगी और गर्म होकर वो ऊपर की तरफ जाएगी। हीटेड अप एंड राइजेस। दिस कॉज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशन टुवर्ड्स द अर्थ। तो इसी वजह से वो एयर, लैंड की एयर गर्म होकर ऊपर की तरफ गई तो वहाँ का स्पेस वेकेंट हो गया, तो ओशियन से हवा चलनी शुरू हो जाती है, विंड्स चलनी स्टार्ट हो जाती है। दिस विंड कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। ये विंड्स अपने साथ पानी भी ले आती हैं और बारिश भी करती हैं। वी कॉल दिस विंड एज मॉनसून। तो इसे क्या बोलते हैं? मॉनसून्स। नेक्स्ट टॉपिक, रेडिएशन। We have done transfer of heat. In this chapter, we are doing transfer of heat. First, we have done conduction method. Then we have done convection. In conduction, transfer of heat in solid, and in convection, transfer of heat in liquid and gases. Now we will do third method. This is also important, radiation. Now we will do radiation. We feel hot when we stand out in the sun or when we are near a fireplace. How does the heat of the sun or a fireplace reaches us? जैसे हम सन की गर्मी या फिर आग के पास खड़े होते हैं तो हीट हमारे तक कैसे पहुंच जाती है अपने आप? ना तो वहाँ कोई सॉलिड है, ना कोई लिक्विड, ना कोई गैसेस, कोई मीडियम नहीं है वहाँ। द हीट ऑफ सन डज नॉट रीच अस आइदर बाय कंडक्शन नॉर बाय कन्वेक्शन. This is because there is empty space between the sun and the earth. सन से अर्थ पे उसकी हीट कैसे ट्रांसफर होगी? कंडक्शन एंड कन्वेक्शन बोथ रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट. It follow that there must be a third method of heat transfer. We call this radiation. It may be defined as method of heat transfer in which no material medium is required. In radiation, the method of heat transfer, that is radiation, in this no material medium is required. इसमें material की medium की जरूरत नहीं होती. Open next page beta. The heat energy received by an object through radiation is called radiant energy. The heat energy required by and received by an object, जैसे कि सन, हम बाहर धूप में अगर हम मेटल की कोई चेयर रख दें तो वो गर्म हो जाती है, तो उसमें हीट एनर्जी आ जाती है. द हीट एनर्जी रिसीव बाय एन ऑब्जेक्ट
through radiation is called radiant energy. We say that all hot objects give out or radiate heat energy. All hot objects give out or radiate heat energy. When a radiant energy fall on any matter, a part of it is reflected back and a part of it is absorbed by the matter. जैसे ही सन की जो रेडिएंट एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, कुछ तो वो ऑब्जेक्ट उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ उसको वापस भेज देता है सन के पास. It is absorbed part of radiant energy that heated up the world. जो वो ऑब्जेक्ट ऑब्जॉर्ब करता है हीट को, उस हीट की वजह से ही वो ऑब्जेक्ट गर्म होता है. absorb part of radiant energy that heat up the object. We find through practical experience that black objects are very good observer of radiant energy. Clear black object absorb more radiant energy. Highly polished or white object on the other hand absorb very little amount. White object absorb very little amount of radiant energy falling on them. Suppose हम धूप में किसी ब्लैक ऑब्जेक्ट को रख दें तो सन की एनर्जी को, रेडिएंट एनर्जी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा एज कंपेयर टू वाइट ऑब्जेक्ट. सोलर कुकर भी ऐसे ही बनते हैं. सोलर कुकर में जो मिरर लगा होता है उसको ब्लैक पॉलिश कर देते हैं, उसमें खाना अपने आप बन जाता है. फिर वी हैव गिवन ए एक्टिविटी. लुक इन द फिगर. टेक 2 identical thermometer. There are 2 thermometer. These are 2 thermometer and keep them side by side. Wrap a piece of black paper. एक पे तो हमने ब्लैक पेपर रैप कर दिया और दूसरे पे वाइट. क्लियर बेटा? नाउ कीप बोथ ऑफ देम एट इक्वल डिस्टेंस. दोनों को इक्वल डिस्टेंस पे रखा गया फ्रॉम द कैंडल, और वी कैन से फायर भी ले सकते हैं. वी ऑब्जर्व दैट टेम्परेचर ऑफ थर्मामीटर हैविंग ब्लैक कलर राइजेज फास्टर. उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाएगा ब्लैक कलर जिस पे हमने रैप किया हुआ एज कंपेयर टू वाइट. दिस शो दैट ब्लैक ऑब्जेक्ट अब्जॉर्ब हीट बेटर देन वाइट ऑब्जेक्ट. तो ब्लैक ऑब्जेक्ट हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं एज कंपेयर टू वाइट ऑब्जेक्ट. हेयर वी हैव गिवन 7 यूजेस ऑफ रेडिएशन. द मेथड रेडिएशन, उसके भी है हमें काफ़ी यूजेस हैं इसके. द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन प्रॉपर्टी ऑफ ब्लैक एंड वाइट ऑब्जेक्ट हैव मैनी प्रैक्टिकल यूजेस. नंबर 1, द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स इज ऑफन केप्ट ब्लैक. जो खाना बनाते हैं अगर वो बर्तन नीचे से ब्लैक हो, दिस अनेबल द यूटेंसिल एब्जॉर्ब द हीट ऑफ द फ्लेम. वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है अगर नीचे से, खाना जल्दी बन जाएगा. सेकंड, वी प्रेफर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ इन समर. दे एब्जॉर्ब लेस हीट फ्रॉम द सराउंडिंग. समर में हम लाइट कलर के या वाइट कलर के क्लॉथ डालते हैं, वो लेस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं. ओके. थर्ड, टी और कॉफ़ी पॉट जिसमें चाय रखी जाती, कॉफ़ी, आर ऑफन मेड शाइनिंग ब्राइट. दे देयरफॉर रेडिएट आउट लेस हीट. उनके अंदर शाइनिंग ब्राइट होते हैं, वो बाहर से भी हो सकते हैं अंदर से. वाई? बिकॉज दे आर शाइनिंग ब्राइट, दे रेडिएट आउट लेस हीट. द टी और कॉफ़ी kept in them therefore stay hot for a longer time. अगर टी और कॉफ़ी उसमें जो रखा हुआ है वो काफ़ी देर तक फिर गर्म रहेगा, वो हीट को
रेडी आउट मीन्स बाहर नहीं जाने देते। फोर्थ, फायर ब्रिगेड मैन ऑफन यूज शाइनिंग ब्रास कैप। जो फायर ब्रिगेड होती है, आग बुझाने वाले, उनकी कैप जो होती है शाइनिंग होती है, शाइनिंग ब्रास। दिस कैप एब्जॉर्ब वेरी लिटल हीट। क्योंकि आग लगेगी तो वहाँ हीट तो होगी, तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी उसकी कैप। देयरफॉर हेल्प द फायरमैन वाइल दे आर पुटिंग ऑफ द फायर। फिफ्थ, हाउसेज जनरली हैव लाइट कलर ऑन देयर आउटर वॉल। आपने देखा होगा मोस्टली सभी के घर के बाहर लाइट कलर का ही पेंट होता है। वाई? बिकॉज दिस एब्जॉर्ब एंड रेडिएट लेस हीट। वो कम हीट को एब्जॉर्ब करेगा। दिस हेल्प टू कीप द हाउसेज कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर। इसी वजह से समर में तो वो ठंडे रहेंगे और विंटर में वो गर्म रहेंगे। सिक्स्थ, मैनी बिल्डिंग्स, नेक्स्ट पेज, ओपन नेक्स्ट पेज बेटा। मैनी बिल्डिंग इन द cities have coated shining glass as their outer wall. सिटीज़ में जो बिल्डिंग्स होती हैं बाहर की तरफ, उनके ना शाइनिंग ग्लास लगा होता है। वाई? बिकॉज दैट ग्लास एब्जॉर्ब लेस हीट। दिस एब्जॉर्ब एंड रेडिएट वेरी लेस हीट। दिस हेल्प टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम। जिससे कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम का में काम करेगा, वो में AC का काम करेगा हमारा। नेक्स्ट, सेवंथ, थर्मोफ्लास्क इज यूज टू कैरी इन हॉट और कोल्ड ड्रिंक। कह रहे हैं थर्मोफ्लास्क में गर्म या ठंडी चीज़ रखी जाती है। इट मेक यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग और पॉलिशिंग सरफेस। उसके अंदर का सरफेस जो होता है शाइनिंग और पॉलिश होता है। सरफेस ऑफ एब्जॉर्बिंग एज वेल एज रेडिएटिंग वेरी लिटिल हीट। वो भी बाहर की हीट को कम एब्जॉर्ब करे, इसीलिए। इट आल्सो मेक, वी हैव डन इन लास्ट वीडियो, थर्मोफ्लास्क हैज़ डबल वॉल आल्सो। इट आल्सो मेक यूज ऑफ